A very good morning, guys. In the last video, we discussed about linearly independent and dependent sets. And this was the last video in which we studied the result that a basis of a vector space is a linearly independent set, but a linearly independent set of vectors need not be a basis of V. Since these linearly independent vectors may not span V. ठीक है, अब basis क्या है वो हम last lecture में पढ़ चुके थे. What is basis? सो अभी मूव ऑन करते हैं बेसिस से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. जैसे कि अब बेसिस से रिलेटेड हमारे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट से पहले हम कुछ और काम करेंगे, लाइक फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेक्टर रिलेटेड टू द बेसिस. ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नेट में भी पूछे जाते हैं जब आप नेट का एग्जाम देंगे. सो ये होता कैसे है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है. सपोज B is the notation. Generally we use the notation B for the basis. V1, V2, Vn is an ordered basis of a vector space V. Then a vector V belongs to capital V can be expressed as V equals to A1 V1, A2 V2, An Vn, where Ai's are the scalars. As usual, you all know these A1, A2, An are called the coordinates of V relative to the basis B. ठीक है. So it may possible when you have more than two bases for a vector space, then maybe for this vector V जो coordinates हों आपके वो उसके different हों. ठीक है, ये हो सकता है आपका. तो अब बेसिस, व्हाट इज बेसिस, यू नो. व्हाट आर स्केलर्स, यू नो. बेसिस है तो हमें पता है एवरी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस. ठीक है, राइट. सो जो स्केलर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग, दीज आर नोन एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वी रिलेटिव टू द बेसिस बी. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई गिव यू द क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर्स of the vector -1 2 3 4 relative to the ordered basis. Basis is given as 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 for the vector space R4 over R. ठीक है. सो इट इज गिवन सिंस B is an ordered basis of R4, then we know that any vector V belongs to R4 can be written as a linear combination of these elements, these basis elements, right? So now -1 2 3, try to write -1 2 3 as a linear combination of these four vectors A B C D. Now you can solve the tuple this is just the tuple calculation, scalar multiplication and addition, and then try to solve both the sides and you get A is equals to this, B equals to this, C equals to this, and D equals to this. So you are getting the real scalars because you need the scalars from real field, and you are getting, hence these are the coordinates -2 5 -1 4 of the vector this relative to the basis B. Now I am going to give you a homework. This is your homework. Homework is find the coordinates of 2i 3 plus 4 iota 5 with respect to the bases 1 0 0 1 1 0 1 1 1 of C cube over C. ठीक है. So now this is your homework. So try to solve the question. Now come to the result related to the basis of a vector space. This is a very important result. If V1 V2 Vn is a basis of the vector space V, then every element of V can be written के साथ यहाँ पर एक extra word भी है, uniquely written. This is very important word. Can be uniquely written as a linear combination of the basis elements. And conversely means if every element of V can be uniquely expressed as a linear combination of these vectors, then this set V1 V2 Vn is known as a basis, right? So सबसे पहले हम first we do, if given it is a basis, then show that every element of V can be written as unique linear combination of V1 V2 Vn. So first try to do this. Suppose V is a this is a basis of V, then we know that every element V belongs to V can be expressed as this combination, at least one combination, right?
So now we are supposing, the idea is of contradiction. Suppose I am supposing, no, it is not possible to write this vector only the unique combination. Maybe I can write V as a linear combination of a1 v1 plus a2 v2 and an vn, or maybe there is another combination is also possible, V is equals to b1 v1 plus b2 v2 plus bn vn. Then I need to show that in the case of bases, a1 must be same as b1, a2 must be same as b2, and an must be same as bn. This is the idea to prove this theorem. So now I'm taking the another combination is given by this, where again the scalars bi belongs to the field f. This is b and this is b. Now you can equate these two equations. So I have done this. Now अब किसी भी सेंस में ले सकते हैं हम इसे, कि अगर मैं कहूं कि इस वाले वेक्टर का, ये एक वेक्टर है आपका b1 v1 इज अ वेक्टर, वेक्टर का एडिटिव इनवर्स इधर भी ऐड कर दो और इधर भी ऐड कर दो, तो जब आप एडिटिव इनवर्स यहाँ ऐड करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये बन जाएगा। ऐसे ही b2 v2 का एडिटिव इनवर्स यहाँ भी ऐड कर दो और यहाँ भी ऐड कर दो। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है माइनस b2 v2 माइनस b1 v1। सो किसी भी सेंस में आप इसे ले सकते हो कि ऐसे हमने v1 v1 को एक तरफ कर लिया, v2 v2 को वन साइड कर लिया, vn vn को वन साइड कर लिया, कैसे भी जैसे आप समझना चाहो। तो ये बन गया this one equals to 0. But it is given that v1 v2 vn is a basis, and we know that the basis set is always linearly independent, and the case of linearly independent, all the scalars must be equal to 0 simultaneously. So this implies a1 minus b1 equals to 0, a2 minus b2 equals to 0, an minus bn equals to 0. This implies a1 is same as b1, a2 is same as b2, an is same as bn. So done. What is done? We have taken, this is the linear combination, this is the another possible linear combination, and we have shown that no, a1 is same as b1, a2 is same as b2. Now you have the result that if we have a basis of a vector space, then every element of that vector space V can be written as uniquely in the combination of the vectors of the basis. Now now we are taking the converse part. Converse part is, suppose every element V belongs to V can be uniquely expressed as a linear combination of v1 v2 vn. Then we have to show that this set is a basis. So for basis we must show that this is linearly independent, v1 v2 vn is linearly independent, or this set spans V. But this is already done ना, because we are assuming every element V belongs to V can be written as uniquely. Uniquely भले ही ना हो, but expressed as a linear combination तो है ही ना. So span तो वो कर रहा है पहले से ही, but आपका केस रह जाता है कि ये linearly independent है. बस आपको linearly independent दिखाते ही ये सेट आपका आराम से बेसिस का काम कर जाएगा. तो हम देख लेते हैं. हमें पता है जीरो वेक्टर इज ऑलवेज बिलोंग्स टू V, एडिटिव आइडेंटिटी तो वहां पर होती ही है. तो हमें पता है कि सिंस 0 बिलोंग्स टू V एंड this line we have assumed can be written as linear combination of the vectors v1 v2 vn. So 0 can be written as 0 is your 0 vector a1 v1 a2 v2 an vn, where ai belongs to the field f. And also we can write easily, because this is 0 vector, 0 v1 0 v2 plus 0 vn. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको 0 के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हो. So ये हो गया. सिंस एक्सप्रेशन फॉर एलिमेंट, अब वी हैव अज्यूम्ड दैट एनी वी बिलोंग्स टू वी, एक्सप्रेशन इज यूनिक. यूनिक गिव्स a1 इज मस्ट बी इक्वल्स टू 0, a2 must be equals to 0 and an must be equals to 0. So you have shown that simultaneously these scalars are equal to 0. Hence the given set is linearly independent. Span तो पहले से कर ही रहा था, linearly independent आपने दिखा दिया. Now done that this set is a basis. ठीक है. अब नेक्स्ट है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का मतलब ये होता है, आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, एक वेक्टर स्पेस जो कि किसी फाइनाइट सेट से जनरेट हो जाए, मतलब v1 v2 vn इससे जनरेट हो जाता है. तो वो कह रहा है कि तो जनरेट होना अलग बात होती है, बेसिस एग्जिस्ट करना अलग बात होती है. ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी वेक्टर स्पेस किसी सेट से स्पैन हो जाता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि वो जो सेट है जिसने उसको स्पैन किया है वो हमेशा बेसिस का काम करेगा. इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. बट इन केस ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड, अगर मुझे ये पता हो कि ये जो सेट है, ये जो वेक्टर स्पेस है, ये v1 v2 vn से जनरेट हो रहा है, तो हम हमेशा इस v1 v2 vn
सेट में से अपनी बेसिस को निकाल सकते हैं, ऑलवेज पॉसिबल। वो टास्क मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगी अभी। इन अदर लैंग्वेज, इफ दिस सेट स्पैन्स वेक्टर स्पेस, देखिए वी आर राइटिंग जस्ट स्पैन्स, नॉट वी आर सेइंग बेसिस, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ एस विच इज द बेसिस ऑफ वी। सो मेरे ख्याल से जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं इसी से ही आपको प्रोसेस इसका क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा हमें पता है, देखो स्पैन का काम तो कर ही रहा है, बेसिस के लिए क्या रह जाता है कि मुझे इसको इंडिपेंडेंट दिखाना है, या तो ये इंडिपेंडेंट होगा, अगर यही इंडिपेंडेंट हो गया तो आपको कुछ दिखाना ही नहीं। आई एम राइटिंग हेयर if the set S is already linearly independent, then done. Then what done? What done? That this S is a basis. ठीक है, स्पैन तो कर ही रहा है पहले से ही, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस का काम तो कर ही जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट इज डन। अब इफ S is not, सपोज इन केस हो सकता है ना ऐसा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही ना, दिस इम्प्लाई एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, इफ इट इज लीनियरली डिपेंडेंट देन नो प्रॉब्लम, दिस इम्प्लाई a vector say VR belongs to S can be written as in the linear combination of remaining vectors, remaining elements of the set S। remaining elements कौन कौन से, V1, V2, VR minus 1, VR plus 1 और ये Vn। ठीक है, अब पहले पूरा सेट क्या था, V1 से लेकर Vn के बीच में, इसमें से मैंने एक एलिमेंट को बाहर निकाल दिया जो मुझे दिख रहा था कि ना भाई वो दैट एलिमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर एलिमेंट, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। नाउ यू आर गेटिंग दिस सबसेट, दिस इज द सबसेट ऑफ S, राइट। नाउ इफ the subset S dash, I am saying this is S dash, S dash means V1, V2, VR minus 1, VR plus 1, Vn. If the subset this is linearly independent, if this is linearly independent then done. What is done? Now come again. I have deleted this element VR because I was able to see that VR is dependent on the other elements, right? अब यहाँ आपने पहले से क्या माना था, that V1, V2, Vn simultaneously spans the vector space. This set spans the vector space, means every element of V can be written as a linear combination of V1, V2, Vn. अब इसमें से एक कोई VR था जो कि इन सब पर डिपेंडेंट था, उसको हमने अलग कर दिया। Now it is true that every element of V can be written as a linear combination of V1, V2, VR minus 1, VR plus 1, Vn. Still VR is not here. Still every element of V can be written as the linear combination of V1, V2, VR minus 1, VR plus 1, Vn. क्यों? क्योंकि पहले से ही वो जो VR था वो तो इन पर डिपेंडेंट था, मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन था, सो कोई समस्या नहीं है। And it is true already that every element V belongs to V can be written as linear combination of V1, V2, VR plus 1, VR minus 1, VR plus 1 and Vn। ठीक है, सो क्योंकि ये सेट भी आपका स्पैन कर रहा है V को, एंड इफ दिस इज Li देन डन। अब इफ इट इज नॉट Li देन वी हैव टू डिलीट दैट एलिमेंट विच वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर्स। सो नाउ रिपीट द प्रोसेस अंटिल वी गेट द सबसेट ऑफ S विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। रिपीट द प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो इस तरीके से जब आप इस प्रोसेस को करोगे देन यू विल गेट इन अ केस ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस दैट देयर इज अ बेसिस। आई हैव एग्जांपल ऑन बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। आई विल डिस्कस द एग्जांपल। वेयर इज द एग्जांपल?
let me check. This is the example. Show that S is equal to 100 110 111 010. एक सेट दिया हुआ है, हमें पता है 3 टपल है, इसका मतलब हम R3 वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं ओवर R दैट स्पैन्स वेक्टर स्पेस. आई एम जस्ट सेइंग स्पैन्स वेक्टर स्पेस. ठीक है, इट मीन्स यू हैव टू शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ R3 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 वेक्टर्स. ठीक है, बट आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ बेसिस. ठीक है, तो मैं अब नाउ चेक, वी नीड टू शो दैट एस स्पैन्स R3. स्पैन्स R3 का मतलब क्या है? एनी एलिमेंट ए बी सी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 वेक्टर्स. सो नाउ ट्राई टू फाइंड x, y, z and w such that this equation satisfied. So when you solve by the tuple calculation and equate from the left hand side, then you will get x is this, y is this, z is this and w is equals to 0. So now you have shown that u can be written as a linear combination of elements of S. Hence S spans R cube. राइट, नाउ शो दैट एस इज नॉट अ बेसिस. देखिए बेसिस के लिए स्पैन तो उसने कर ही दिया, स्पैन में कोई समस्या नहीं है, बट यू हैव टू शो दैट दिस सेट इज नॉट लिनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि जैसे ये लाई का केस फेल होगा ये बेसिस बनेगा नहीं. सो आपको क्या दिखाना है? बेसिस नहीं है, उसके लिए एस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट. इट मीन्स नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट. इट मीन्स recall the definition of linearly dependent set. If a1 v1 plus a2 v2 a3 v3 plus a4 v4 equals to 0, then you have to show that a1 a2 a3 and a4 are not simultaneously equal to 0. So I am doing the same work as the definition says. क्या? x this, y this, z this, w this is equals to 0. Then I have to show that there exists a non-zero solution of set for this equation. नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब है कम से कम एक एक्स वाई जेड डब्ल्यू में से एक तो कम से कम नॉन जीरो आपको मिल ही जाएगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील. यहाँ से आपको मिलेगा विच गिव्स दिस दिस दिस. सो पर्टिकुलरली इफ आई एज्यूम फॉर अ वाइल दैट इफ टी इज इक्वल्स टू 1 देन यू विल गेट x equals to 1, y equals to minus 1 and z equals to 1 and t equal to 1. So there exists at least one non-zero solution which satisfies equation number 1. Hence you have shown that the set is not linearly independent. It means every set which spans V doesn't imply that this is the basis. क्योंकि हो सकता है कि उसमें से कोई एक या दो या तीन या चार बाकियों पर डिपेंडेंट हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है बट द सबसेट लिया मैंने इसी वाले सेट का, जो ये सेट आपको लोगों को मैंने अभी दिखाया था, ये 100, इसका सबसेट क्या लिया है मैंने? देखिए 100 111 और 010. इसमें से मैंने क्या डिलीट कर दिया है? ये वाला एलिमेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये जो एलिमेंट है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, इसको डिलीट कर दिया. तो जब ये 3 एलिमेंट बचे हैं, अब आप आराम से देख सकते हो कि ये तीनों एलिमेंट इसके लिए बेसिस का काम करेंगे, यानी कि स्पैन तो कर ही रहे हैं. स्पैन में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी. क्यों? क्योंकि ये वाला सेट तो स्पैनिंग सेट था ही ना वी के लिए. जो डिपेंडेंट वाला था वही तो हटाया है आपने. तो ये तो पहले से ही इनका कॉम्बिनेशन में है, तो कोई समस्या नहीं है अभी भी पूरे R3 को इनके कॉम्बिनेशन में लिखने में. क्यों? क्योंकि इस वाले एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट. सो अल्टीमेटली आपने दिखाया है कि ये जो ABC है वो इन 3 के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. तो स्पैनिंग में कोई डाउट नहीं है, बचा लीनियरली इंडिपेंडेंट. वो आप आराम से चेक कर सकते हो कि ये जो सेट है वो LI है. ठीक है, ये एज अ होमवर्क मान लो या कुछ भी मान लो, मैंने इसको छोड़ दिया है आप लोगों के लिए कि एक बार आप इसे ट्राई कीजिएगा. और इन चीज़ों को ध्यान भी रखना कि जैसे कि अभी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी. सबसे पहले हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट पढ़े थे. जब ये पढ़ लिया तो उसके बाद बेसिस में आए, क्योंकि बेसिस में लीनियरली इंडिपेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी, तो वो थोड़ी सी एक एक्सटेंडेड डेफिनेशन है. उसके बाद जब हमने बेसिस पढ़ लिया देन वी आर गेटिंग सम रिजल्ट्स related to basis. Like if this set is a basis for a vector space, then we know that every element of V can be uniquely written as a linear combination of that basis set. ठीक है, ये पढ़ा आपने एक रिजल्ट. दूसरा रिजल्ट क्या पढ़ा? फॉर एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ बेसिस. यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है फाइनाइटली जनरेटेड. अगर मुझे पता है कोई फाइनाइट सेट किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है तो वहाँ मैं हमेशा उसी सेट में से अपनी बेसिस निकाल सकती हूँ. कैसे? कौन सा प्रोसेस है? वो जो डिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं उनको हटाते चले जाइए.
उनको डिलीट करते चले जाइए, तो जो जो फाइनल आपके पास में सेट आएगा वो स्पैन तो कर ही रहा है, स्पैनिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है। LI आप उसे दिखा ही लोगे कि अब वो LI है। तो ये 2 रिजल्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। और इंटरव्यू पर्पस मैं आपका हमेशा वीडियो के लास्ट में बोलती हूँ कि इंटरव्यू पर्पस से लीनियर अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं आपके। और ऑब्वियसली जब आप एकेडमिक्स में हो, MSc कर रहे हो, BSc कर रहे हो, तो टीचिंग लाइन में ही जाओगे, डेफिनेट ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है। या PhD भी करोगे तो PhD में भी इंटरव्यू भी दोगे, IIT में दोगे इंटरव्यू। मैंने खुद IIT दिल्ली से PhD किया है, तो इंटरव्यू दिया था वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझसे लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। तो बहुत हेल्प मिल जाती है आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चन से अपने इंटरव्यूज़ को क्लियर करने में। सो अगर अभी से ही आप अपना बेस उसी तरीके से करके चलोगे कि हाँ आपको आगे इंटरव्यू देना है, नेट का एग्जाम भी देना है, सो लीनियर अलजेब्रा के भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपको नेट के एग्जाम में मिल जाते हैं। तो शुरू से बेस बना के चलोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी आप लोगों के शेयर करने से या व्यू करने से, कमेंट करने से, बेल आइकन को दबाने से मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी, तो वो मैं आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर छोड़ सकती हूँ आपके ऊपर, कि ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे पॉजिटिविटी दीजिए, ताकि मैं पॉजिटिविटी के साथ में आपको और एग्जाम्पल्स या और ये जो पूरा कोर्स चल रहा है इसे मैं लास्ट तक आपको ख़त्म करा सकूँ अच्छे से। ठीक है, सो आप कमेंट कीजिएगा एंड देन टेल मी। बाकी आगे हम अभी बेसिस पर ही कुछ और भी रिजल्ट्स आप लोगों के रह रहे हैं। तो बेसिस में जैसे कि एक रिजल्ट, तो मेन रिजल्ट ये रह रहा है कि अगर हमारे पास में किसी एक वेक्टर स्पेस की एक बेसिस मिल जाती है, तो क्या ऐसा है कि मान लो इस बेसिस में इफ दिस बेसिस सेट हैज़ n एलिमेंट्स, तो जो दूसरा बेसिस सेट होगा उसी वेक्टर स्पेस का, उसके अंदर m एलिमेंट होंगे, मतलब कि काउंटिंग अलग अलग हो सकती है क्या? ये रिजल्ट हम कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि अच्छा रिजल्ट है आप लोगों का। देन गुड बाय एंड गुड डे, हैव अ नाइस डे।